हेलो, वेलकम बैक टू एसएम क्लासेस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम नाइन्थ स्टैंडर्ड का सेट जो टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सेट पार्ट 2। ओके, सो इन अ प्रीवियस lecture we come up with this few points and now we are talking about a little bit advanced one. अब हमने जो टाइप सॉरी जस्ट वी विल रिवाइज इट शॉर्टली. So what we learn, we learn about type of set. Okay, then we talk about example of each set. ठीक है, in that case we talk about singleton set, then afterwards we talk about empty set, finite set as well as a infinite set. These all terms that we already discussed in a previous one. So now we are talking about new concept which is about the equal set. Clear है? So this is our main target. Now we are talking about the equal set. So what is mean by equal set? See, in our mathematics we are writing like A is equal to B. Okay, A is equal to B मतलब क्या होता है? Suppose take example 4 is equal to 4 means this term which is present in a right hand side also, this term which is present in a left hand side also. So that's why we call it as a equal one. Clear है? So before we are talking about this, just write down the definition. So all the elements of A which are present in B. So then and then we call it as A is equal set of B. So A is equal set of B. Clear है? So likewise हम लिख सकते हैं कि A is the equal set of B. Clear है? Let's assume it. हम दो सेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Let's assume it this one which is a set A. Which one? This is a set A and this is set B. Clear है? So write down the numbers. A is equal to, write down 1, 2, 3, 4, 5 and 6. And B which has a number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So these all are the elements of A and elements of B. Suppose this is the element of A and these all are element of B. So if you observe all the elements, clear है? If you observe all the elements, so write down here 1, 1, 2, 2, sorry, 3, 3, 4, 4, 5, 5 and 6. So each element which is present in A, this all the element which is present in a B. So therefore this type of set we call it as a equal set. Clear है? This type of set we call it as a equal set. Now write down another one example. चलो take example two words. Okay, take example word listen. ठीक है? And second word is silent. So what is our target? We have to show that the set of word or letters, set of letters in a listen and a set of letters in a silent, these both are equal. These both are equal set. Clear है? तो ये अभी हमें प्रूव करना है. So first of all write down in a standard format. So just write down, suppose this is the A set and write down this is B सेट. तो हमें क्या करना है, जब इसका हम सेट बना रहे हैं तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट वी हैव टू राइट अ
each and every letter, we have to write each and every letter once in a set. So first letter is L, so write down L. Second I, S, T, V and N. ठीक है, so L, I. Okay, this is a set of lesson word. And now next one, साइलेंट. तो अभी इसको कोरल कंपेयर करके यार इसके जैसे हम लिखेंगे. पहला यल आ रहा है तो इसमें है क्या, यल है, यल. आई भी है, यल मिल गया, आई मिल गया. नेक्स्ट वन एस, ठीक है. नेक्स्ट टी भी है, ई है और एन है. ठीक है. अब मान के चलो मैंने इसका जो सेट बनाया है ये हमें ये मिल गया. अब हम इस वर्ड का जो सेट बना रहे हैं तो ये हमें यहाँ पे मिल रहा है. अब यहाँ पे देख लो, एल आई एस टी ई एन, यहाँ पे जो वर्ड्स है, सॉरी लेटर्स है, तो देखो यहाँ पे भी लिसन मिल रहा है और यहाँ पे भी लेसन मिल रहा है. ठीक है. तो एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए, अब यहाँ पे देख लो क्या है, all the elements which is present in a A, these all the elements are present in a B, and that's why this set we called as a equal set. So therefore we can say that A is equal to B, or we say that A and B both are equal set. Clear है, both are equal set. Clear. Now let's move to the next point. So in this case we are using different types of diagrams. Okay, so John Venn, okay, which is the scientist, okay, this Venn, which is the name of that scientist who discovered the concept to represent the set in the form of diagram or pictorial format. So for that he assumed various types of diagrams. He considered circle. उन्होंने क्या किया कि डायग्राम को जो है वो जो प्रोबेबिलिटी की केस है या फिर सेट जो है उन्होंने क्या किया कि डायग्रामेटिकली पिक्टोरियल फॉर्म में उन्होंने कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट करना शुरू किया. तो उन्होंने जो फेमस बुक है उसमें भी रिप्रेजेंट किया है लॉजिक ऑफ चांस. उसमें प्रोबेबिलिटी और लॉजिक से रिलेटेड बहुत से एग्जांपल्स डायग्रामेटिकली उन्होंने एक्सप्लेन किए. तो हमें इतना भी डिटेल में नहीं जाना है, बस हमें जो वेन डायग्राम्स उन्होंने क्या क्या वेन डायग्राम्स यूज़ किए, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स यूज़ किए, उसके बारे में हमें रिप्रेजेंट करना है और डिस्कस करना है. सो इन सम डायग्राम्स दे यूज अ सर्कल्स, ठीक है. इन सम केसेस दे आर यूजिंग ओवल्स, देन इन सम केसेस दे आर यूजिंग रेक्टेंगल्स. क्लियर है. सो ये तीन टाइप की जो डायग्राम्स है वो उन्होंने यूज़ किए. ठीक है. सो बट अब यहाँ पे हमें ये भी पता करना है कि ये जो डिफरेंट डायग्राम्स है, तो डिफरेंट डायग्राम्स दे आर यूजिंग फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट और फॉर द डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन. क्लियर है. सो लेट्स सी द फर्स्ट केस. अगर मान के चलो इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ इंडिविजुअल सेट, if you want to represent individual set, suppose I want to represent set A, okay, suppose I want to represent another one set B, so that time we are using this type of diagrams. Suppose if you want to represent a big cell, bigger set, or that we call it as a universal set. Universal set. So for that we are using this box, either square or either we are using rectangle. Clear है. Suppose this is another one diagram, this is also rectangle. So we are using this to represent universal set. Okay, जब भी हम लिख रहे हैं तो इस कॉर्नर में हमें क्या करना है, U लिखना है, ताकि हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये कौन सा सेट है. दिस इज अ universal set. Okay, this is universal set, and for that we have to write symbol at a corner. Clear है. So universal set. So
बाद में next video or in next part also we are talking about universal set, but here just we will learn something about universal set. Okay, universal set means which is the biggest set. Okay, biggest set of element, biggest set of element, so which has all the elements, which has all the elements from all the sets. ठीक है, which has all the elements from all the sets. क्लियर है? तो यूनिवर्सल का मतलब जस्ट एक एग्जांपल ऑफ आवर यूनिवर्स, उसमें सन भी है, स्टार्स भी है, मेटेरॉइड्स भी है, अदर प्लैनेट्स भी हैं, ठीक है, मून है, सो इवन ऑल टाइप्स ऑफ गैसेस, तो सभी को मिला के हमारा यूनिवर्स बनता है. ठीक है, तो उसी तरह से ये जो मैथमेटिक्स में जो यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर रहे हैं वो पूरे एलिमेंट का एक बड़ा वाला सेट होगा, जस्ट लाइक एज अ गैलेक्सी और जस्ट लाइक एज अ यूनिवर्स. तो इसी के बेसिस पर से अगर हम कंसिडर करना चाहें तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं. मतलब क्या आ जाएगा कि ऑल द एलिमेंट्स, ओके, मान के चलो सेट ए है, बी है, सी है, तो उसी सभी जो सेट्स है उसके एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होने ही होने हैं. क्लियर है? तो उस सेट को हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट. अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके हम इसको डिस्कस करेंगे. अब मान के चलो एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ. सपोज एज यूजुअल हमारा ये ए सेट होगा और ये इसके एलिमेंट मान के चलो 3, 6, सॉरी थोड़ा डार्क लिख लेता हूँ मैं. एलिमेंट्स आर 3, 6, 4, 9 और 10 है. नाउ सेट बी, ओके, अगर बी के एलिमेंट देख लोगे तो क्या है, 1, 4, 5, 8, 10, 12. ठीक है, तो यहाँ पे देख लो हमने ए सेट भी मेंशन किया है, यहाँ पे बी सेट भी मेंशन किया है. क्या और इन दोनों का यूनिवर्सल सेट, ओके, इन दोनों का यूनिवर्सल सेट ऑब्वियसली ऐसा नंबर होगा कि जिसमें 1 से लेकर 12 तक नंबर होंगे. क्लियर है? सो इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ यूनिवर्सल सेट, सो यूनिवर्सल सेट विच इज़ लाइक दैट, टेक अ नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. तो यहाँ पे देख लो हर एक नंबर जो ए में है, जो बी में है, वो भी उसमें प्रेजेंट है और उसके अलावे भी कुछ एलिमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट है. तो इस सेट को कहेंगे हम यूनिवर्सल सेट. क्या कहेंगे हम? यूनिवर्सल सेट. सो ए का यूनिवर्सल सेट ये रहेगा, सिमिलरली बी का भी यूनिवर्सल सेट यही रहेगा. क्लियर है? चलो, नाउ इफ यू वांट टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस, ठीक है, इफ यू वांट टू ड्रॉ डायग्राम फॉर दिस, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट दिस एलिमेंट्स इन दिस डायग्राम, सो लेट्स ट्राई फॉर दिस. अगर आपको यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, व्हाट यू वांट टू रिप्रेजेंट, यू वांट टू रिप्रेजेंट अ सेट इन दैट पर्टिकुलर डायग्राम. तो ये दोनों सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे. चलो, सो राइट डाउन, ये जो सेट है पहला हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. लेट्स, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट हम क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि जो सेट ए है अभी उस सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम. लेट्स अज्यूम इट, ये जो होगा वो सेट ए होगा. क्लियर है? ठीक है, अब हमें दूसरा भी सेट रिप्रेजेंट करना है, बी. सो लेट्स अज्यूम इट, ये जो ग्रीन कलर वाला है वो हमने कंसिडर कर लिया सेट बी.
सो नाउ व्हाट इज आवर टारगेट. सो अब यहाँ पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉरी ओके. सो थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सबसेट. ठीक है, चलो. हाँ, सो लेट्स गो टू द प्रीवियस वन पेज हियर. सो व्हाट इज आवर टारगेट, वी आर रिप्रेजेंटिंग सेट ए, सेट बी एंड यूनिवर्सल सेट. हम क्या कर रहे हैं, वो डायग्रामेटिकली उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब हमने ए सेट अलग ले लिया, बी सेट अलग ले लिया. अभी हमें क्या करना है कि उसको डायग्रामेटिकली वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है. तो यहाँ पे देख लो कौन से एलिमेंट्स हैं. यहाँ पे तो पहला एलिमेंट हम जो सेट ए है उसके एलिमेंट लिख लेते हैं. सो 3, चलो सो यूनिवर्सल को कंसिडर करके लिख लेते हैं. यूनिवर्सल कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 12 तक है. अब पहला नंबर, एक नंबर किस में आ रहा है, सेट बी में आ रहा है. सो राइट डाउन हियर 1. अब 2 देखो कहाँ पे है, 2 कहीं पे नहीं, मतलब वो यूनिवर्सल सेट में रहेगा. 3 यहाँ पे है, 4 ए में है, 5 यहाँ पे है. ठीक है, सो 4 यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी लिख लो 4. नेक्स्ट 4 हो गया, 5 हो गया. नाउ 6 हियर, 7 दोनों में भी नहीं है, मतलब यहाँ पे जाएगा यूनिवर्सल में. 8 ओके, 8 बी में है, 9 ए में है, 10 ए में है, 11 कहीं पे भी नहीं, मतलब वो यूनिवर्सल में चला जाएगा. और ये 12 यहाँ पे है. तो ये जो डायग्राम हमने बनाई है, ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ दिस जो हमने अलग अलग से सेट लिए हैं, उसके वजह सॉरी इसके अलावा हम इस रिप्रेजेंटेशन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब यहाँ पे देख लो यूनिवर्सल सेट मतलब क्या है कि जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इस बॉक्स में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, ये पूरे के पूरे नंबर. ये नंबर भी रेक्टेंगुलर बॉक्स का ही पार्ट है, ये भी रेक्टेंगुलर बॉक्स का भी पार्ट है, और ये सभी रेक्टेंगुलर बॉक्स का ही पार्ट है. तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. क्लियर है. तो ये बन गए यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स. अब ए का मतलब क्या होगा, जो कुछ भी यहाँ पे है ओके पहले वाले सेट में, तो उसको हम कहेंगे एलिमेंट ऑफ ई, एंड दिस ऑल वी कॉल्ड एज एलिमेंट ऑफ बी. क्लियर है. तो इस तरीके से आपको जो डायग्राम्स है वो डायग्राम्स बनानी है. क्लियर है. चलो, सो अब इसको थोड़ा इरेज करते हैं ताकि हमें दूसरा जो पॉइंट है सबसेट का पॉइंट वो हमें डिस्कस करना है. क्लियर है. ओके चलो, ठीक है. सबसेट के लिए डायग्राम हमें चाहिए थी. सो लेट्स अज्यूम इट. सबसेट का मतलब क्या है, अब मान के चलो 2 सेट हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, 2 सेट हम डिस्कस कर रहे हैं. Let's see, this is set A, sorry, let's assume it, this is set A and this is set B. okay. अगर सबसेट का मीनिंग क्या होता है कि अगर मान के चलो कोई एक सेट है और उसके जो पूरे के पूरे एलिमेंट अगर दूसरे सेट के एलिमेंट्स है, तो वो जो सेट है वो पहले सेट का सबसेट माना जाएगा. ठीक है, मतलब टेक एग्जांपल ए, इसमें जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, एंड बी सेट इज 3 4 एंड 7. ठीक है. सो अब सबसेट में हम क्या लिख सकते हैं, सो every element, okay, just take example of set B. Every element of a B
is a part of A. Okay, every element of a B is a part of set A. Then this B set we call it as a subset of A. क्लियर है? अब मान के चलो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर मान के चलो यहाँ पे A सेट है, दिस वन इज अ बिगर टर्म, दिस इज सेट A एंड दिस इज अ सेट B. क्लियर है? सो व्हाट आर द एलिमेंट्स इन अ B? 3, 4, 7. क्लियर है? 3, 4, 7 दीज आर द 3 एलिमेंट्स. ओके, अब जो सबसेट निकाल रहे हो मतलब ये 3, 4, 7 तो है, कहाँ किस में है? ए में है, तो ए के एलिमेंट क्या आ जाएंगे? 1, 1, 2, 3 तो यहाँ पे है, 4 भी यहाँ पे है. नाउ 5, 6 नहीं है मतलब 6 आएगा, और 7 ऑलरेडी यहाँ पे है. क्लियर है? सो इफ यू ऑब्जर्व दिस डायग्राम, सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ बी, ठीक है, सो सबसेट का मतलब होता है सो ऑल द एलिमेंट ऑफ बी, ओके, इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए. ओके, इन शॉर्टली यहाँ पे देख लो, ये जो पूरा सर्कल है, ठीक है, ये जो बी वाला सेक्शन है वो कॉमन है दोनों में. क्लियर है? जो 3, 4 और 7 एलिमेंट है वो ए के भी मेंबर है और बी के भी मेंबर है. सो दैट्स वाई वी से दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए. मतलब वो ए में भी है और बी में भी है. तो ये सब किसके अंडर आ रहा है? बी सेट किसके अंडर आ रहा है? ए के अंडर आ रहा है. सो दैट्स वाई वी कॉल्ड एज अ सेट बी इज सबसेट ऑफ ए. तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं? जो अंदर वाला सेट है वो पहले आएगा. सो बी इज सबसेट ऑफ ए. क्लियर है? नाउ टेक अनदर वन एग्जाम्पल. लेट्स राइट डाउन वन एग्जाम्पल. अब यहाँ पे देख लो क्या है? इंटीजर्स. ठीक है, यहाँ पे सेट मान के चलो इंटीजर है और दूसरा नेचुरल नंबर्स है. ठीक है, इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर्स. अब इंटीजर का सेट क्या बनेगा? इन्फिनिटी टू, -1, 0, +1, +2 अप टू इन्फिनिटी. कुछ इस तरीके का बनेगा. अब नेचुरल नंबर का सेट क्या बनेगा? 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी. क्लियर है? अब यहाँ पे देख लो, अगर यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये जो इंटीजर का सेट है और नेचुरल का सेट है, इसमें कॉमन क्या है? ये जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो किस में कॉमन है? जो नेचुरल नंबर्स है वो इंटीजर का पार्ट है. क्लियर है? नेचुरल नंबर्स आर, these all natural numbers are part of integer. तो अगर हम इस सेट को अगर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, अगर मान के चलो हमने इसी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो लेट्स अज्यूम इट, यहाँ पे जो बड़ा वाला सेट होगा ऑलवेज इंटीजर ही होगा. ठीक है, अब जिस पे इंटीजर में कौन कौन से नंबर आएंगे? जो बड़ा वाला सर्कल है, जो कॉमन पोर्शन है वो पहले लिख लेना है आपको. सो इंटीजर में भी 1, 2, 3, 4, 5 पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं. नेचुरल नंबर में भी 1, 2, 3, 4 वो पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं. तो यहाँ पे इस सेट में कौन से नंबर होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी. क्लियर है? तो यह क्या हो गया? दिस इज अ सेट बी. ओके, मतलब बी या फिर हम नेचुरल नंबर कंसिडर कर सकते हैं. डोंट राइट बी, राइट डाउन नेचुरल नंबर्स. नाउ सेट ऑफ इंटीजर्स, तो उसमें कौन कौन से नंबर आएंगे? 0, -1, -2, -3, -4, -5 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी. क्लियर है?
तो अगर पूरा सर्कल इंटीजर का अगर सर्कल आप ऑब्जर्व करोगे तो उसमें 0 के साथ नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, ओके, ये पूरे सर्कल में। सो इफ़ यू ऑब्जर्व दिस, सो इन दिस होल सर्कल, ये जो पूरा वाला सर्कल है ग्रीन कलर का, तो उसमें पूरे के पूरे नंबर आ रहे हैं, मतलब इंटीजर्स आ रहे हैं। सो दिस ऑल नंबर्स, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो भी नंबर्स इसके ही मेंबर है, और ये जो रेड कलर में है वो भी उसके ही मेंबर है। तो इंटीजर का सेट क्या बनेगा, +1 प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। क्लियर है। तो ये जो बीच वाला सेंटर है, बीच वाला सर्कल है, नेचुरल नंबर्स है, वो नेचुरल नंबर किसका पार्ट बन रहे हैं, इंटीजर्स का पार्ट है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, द नेचुरल नंबर n इज सबसेट ऑफ i। नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। क्लियर है, क्योंकि वो जो नेचुरल नंबर है वो किसका पार्ट है, सबसेट, सॉरी किसका पार्ट है, इंटीजर का। तो हम उसको कहेंगे नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ इंटीजर्स। क्लियर है। चलो अभी बुक में एक एग्जांपल है तो उसी पे थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं और इसी को डायग्रामेटिकली लिख लेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। चलो, सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सो राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, set A is given to you, set B is also given to you. चलो, so let's assume it, set P which is given to you -5, +5, और similarly set S is given to you -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Clear है। And now we have to show that which set is a subset of, और P सबसेट किसका है या फिर S सबसेट किसका है, ये आपको शो करना है, प्रूव करना है। So for that first of all write down the set। अब ये बड़ा वाला सेट है, डेफिनेटली इट इज़ अ yes and smaller one assume it P, क्योंकि यहाँ पे देख लो -5 प्रेजेंट इन yes, +5 विच इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन yes, मतलब P के जो और एलिमेंट्स है वो कहाँ पे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, तो yes से। तो डेफिनेटली हम ऐसे ही लिख सकते हैं, P इज सबसेट ऑफ S। क्लियर है, क्योंकि दिस ऑल कॉमन एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन अ सेट S। क्लियर है। तो P के पूरे एलिमेंट यस में प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली जो यस में प्रेजेंट है जो दूसरा वाला उसी का सबसेट होगा, मतलब P के एलिमेंट यस में प्रेजेंट है तो P इज अ सबसेट ऑफ यस। अभी डायग्रामेटिकली हमें प्रूव करना है। सो राइट डाउन सेट्स -5, ओके, यहाँ पे देख लो ये -5 से स्टार्ट हो रहा है, तो -5 कहाँ किसका एलिमेंट है, P का एलिमेंट है। सो यहाँ पे हमने मेंशन किया है। नाउ रिमेनिंग ऑल राइट डाउन, -4, -3, -2, -1, 0 भी नहीं है, 0 S का एलिमेंट है। देन 1, 2, 3, 4 और 5 क्या है, P का एलिमेंट है। क्लियर है। सो फ्रॉम दिस डायग्राम, ये हो गया डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। सो फ्रॉम दिस डायग्राम जो अंदर वाला सेट है ऑलवेज P होगा, किस सबसेट होगा, बड़े वाले का। सो P इज अ सबसेट ऑफ S। लाइकवाइज आपको ये सॉल्व करना है, और इवन अगर डायग्रामेटिकली प्रूव करने के लिए बोला तो ये आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। क्लियर है। सो इसके रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बुक्स में दिए हैं। इफ़ यू वांट टू रेफर देन रेफर पेज नंबर 8 and 9। क्लियर है। चलो नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी ऑलरेडी हमने उसको रिवाइज किया है। ओके, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है all under the consideration, okay, the particular bigger set which is in which all the elements of all the other sets which is present in that one set. ठीक है। So once again I will revise it. Universal set means the bigger set in which
all the elements of other set is present in in that set. Okay, and this one called as a universal set, and universal set which is always represented by this rectangle. ठीक है, U stands for universal set. ठीक है, तो मैं ऑलरेडी एक एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया है. यूनिवर्सल सेट मान के चलो नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट है, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू डैश 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 अप टू इन्फिनिटी. क्लियर है. नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे अगर मान के चलो हम सेट ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो 20 30 40. बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 2 9 7. ठीक है, सो यहाँ पे देख लो 20 30. सो दिस इज ए सेट, दिस इज बी सेट. सो द एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए विच इज प्रेजेंट इन दिस सेट. अब यहाँ पे देख लो 1 से लेकर अगर हम इन्फिनिटी तक काउंट कर रहे हैं तो 20 30 40 तो उसमें आना ही आना है. सेकेंड थिंग 1 2 9 7. सो दिस इज एलिमेंट ऑफ बी विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अ यूनिवर्सल सेट. क्लियर है. मतलब पूरे यूनिवर्सल सेट ऐसा होता है कि जो बाकी के जो आपके एलिमेंट्स है, मतलब सेट ए के एलिमेंट, सेट बी के एलिमेंट, तो वो सभी के सभी यूनिवर्सल में प्रेजेंट होते हैं. क्लियर है. अगर आप सेपरेटली लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ए जस्ट राइट डाउन लाइक दिस, यू इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी. और अगर हम ए को रिप्रेजेंट करेंगे तो ए इज इक्वल टू 20 30 40. एंड बी को रिप्रेजेंट करेंगे तो बी इज इक्वल टू 1 2 9 7. सो लाइक दैट. अब देखो ये पूरे के पूरे एलिमेंट इस सेट का पार्ट है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल सेट. चलो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है. कॉम्प्लीमेंट. ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. ओके, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है कि मान के चलो अभी कोई सेट आप लिख रहे हो और उसको हम यूनिवर्सल सेट के साथ कंपेयर कर रहे हैं. एंड we want to find a complement of that given set. okay, so complement क्या होगा, जो सेट ए है उस सेट को छोड़ के जो बाकी के एलिमेंट आएंगे उसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. टेक एग्जांपल, अभी सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ कॉम्प्लीमेंट का. मीन्स व्हाट, सपोज दिस इज योर क्लास एंड दिस इज योर स्कूल प्रीमाइस. तो जो आपका क्लास है, इस क्लास को छोड़ के जो बाकी सब बच रहा है, ओके, जो कुछ भी रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ योर क्लास. ठीक है, सो दिस शेडेड पोर्शन, ओके, दिस शेडेड पोर्शन इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ योर क्लास. सो दिस इज योर क्लास and whatever the material or whatever the portion which is outside the class rather than your class, this is the complement of your class. ठीक है, आपके क्लास को छोड़ के जो कुछ भी बाहर बचता है वो होगा आपके क्लास का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. नेक्स्ट, सिमिलरली जस्ट फॉर द कॉम्प्लीमेंट, ओके, व्हाट इज आवर, we have to write it like that, all the elements, okay, all the elements which is present in a universal set. okay, इसको हम define कैसे कर सकते हैं, all the element present in universal set except the elements in a given set, except the elements in
गिवन सेट। क्लियर है। अब यहाँ पे हम इसी को ही एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। लेट्स अज्यूम इट दिस इज सेट ए, this is set A, and what is the target? We have to calculate the complement of A. So we are calculating A dash which we called as a complement, A dash which we called as a complement. अब यहाँ पे complement आपको फाइंड आउट करना है, मतलब ये पोर्शन में जो एलिमेंट है वो आपको नहीं लिखने हैं, ठीक है, बट जो येलो कलर पोर्शन है इसमें से जो कुछ भी एलिमेंट है वो आएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में। क्लियर है। तो चलो अभी एग्जाम्पल सॉल्व कर देते हैं। सो ये तो दिमाग में आ गया कि जो एलिमेंट अपने सेट का पार्ट है, गिवन सेट का, बट उसको छोड़ के जो अदर एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में हैं उनको काउंट करना है। क्लियर है। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज u इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स 1 to 10, ठीक है। u को हम क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट को कंसिडर कर रहे हैं 1 to 10, एंड सपोज जो a सेट है, अब मैं यही लिख रहा हूँ, सेट a इज मल्टीपल ऑफ 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है। 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सो जो इस सेट में है, किस सेट में, जो ए सेट में है वो ऑलरेडी किसका पार्ट है, यूनिवर्सल सेट का पार्ट है। तो ऐसे अज्यूम करके चलना है। जो ए में नहीं वो बाहर आएगा। यूनिवर्सल सेट में क्या है, 1, 2 यहाँ पे है, 3, 4 यहाँ पे है, सो 5, 6 यहाँ पे है, 7, 8 यहाँ पे है, तो डोंट राइट 8, 9 और यहाँ पे 10 है। मतलब ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सो दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट यू। क्लियर है। तो अब हमें इसका सबसेट लिखना है। ओके, सबसेट कैसे लिखोगे? और जो एलिमेंट्स है, दो एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन अ यूनिवर्स, उतने ही लिखने हैं हमें। वी आर नॉट राइटिंग दिस एलिमेंट्स। क्लियर है। एक्सेप्ट दिस एलिमेंट्स वी हैव टू राइट अ यूनिवर्सल सेट। अब मान के चलो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा? सो ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लो सर्कल में क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 है। तो इनको छोड़ के बाकी नंबर लिखने हैं। मतलब 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्लियर है। तो ये बन गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। चलो अब सिमिलर टाइप के अब एक दो एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलेंगे। तो टेक वन एग्जांपल। अब यहाँ पे देख लो, एक एग्जांपल आपको कॉम्प्लीमेंट के लिए निकालना है। सो फर्स्ट एग्जांपल इज गिवन टू यू, सेट ए, सपोज u is given to you 1, 3, 9, 1, 3, 9, 11, 13, 18 एंड 19, ठीक है। ये आपका यूनिवर्सल सेट है। सो फॉर दैट बी सेट इज गिवन टू यू 3, 9, 11, 13। सो 3, 9, 11 एंड 13, ठीक है। तो अब करना क्या है आपको, जो फाइंड आउट करना है, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो वी हैव टू कैलकुलेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो फिलहाल हम नंबर्स सेट को रिप्रेजेंट करके ले लेते हैं। दिस इज यू, दिस इज सेट बी, ठीक है। अब यू को रिप्रेजेंट कर लो, 1, 3 यहाँ पे है तो ये यहाँ पे चला जाएगा। नेक्स्ट वन 9, तो इसी में है 3, 9। अब मान के चलो कॉमन वाले लिख के लो, 3, 3, 9, 9, 11, 11, 13, 13,
तो ये कॉमन है, मतलब वो बी में भी आएंगे और यू में भी आएंगे। अब बचे क्या है, 1 एक बचा हुआ है, रिमेनिंग टर्म 1, 18 एंड 19। तो ये हो गई हमारी डायग्राम। लाइकवाइज हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सो आवर टारगेट इज वी आर कैलकुलेटिंग बी कॉम्प्लीमेंट। सो बी कॉम्प्लीमेंट हम आसानी से अब आप बता सकते हो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ऑब्वियसली बी के एलिमेंट, ये एलिमेंट्स को छोड़ के जो बाकी के एलिमेंट है वो हमारा बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सो देयरफॉर बी कॉम्प्लीमेंट इज 1, नेक्स्ट वन क्या है 18 एंड 19। तो आपका आंसर इज बी कॉम्प्लीमेंट इज 1, 18 एंड 19 and this answer is by calculus method and this answer is by Venn diagram method. Clear है? So likewise we have to show that with the help of diagram also and with the help of without diagram also. Now this is a quite interesting topic which is operations on a set. ठीक है, अगर मान के चलो मोर देन 2 सेट्स विच इज़ गिवन टू यू, ठीक है, तो उस केस में हम किस टाइप के ऑपरेशंस कर सकते हैं और उसको रिप्रेजेंटेशन उसका कैसा आएगा। तो अब यहाँ पे देख लो, जो पहला ऑपरेशन है उस केस में वो क्या है, यूनियन ऑफ सेट। ऑलवेज ये जो पहला लेटर है यू पे फोकस करना है। और दूसरा ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, सो इन दिस केस हाउ यू विल रिप्रेजेंट दिस सेट। सो यूनियन का मतलब इसका सिंबल आ जाएगा ए यूनियन ऑफ बी। यहाँ पे यू लिखना है, सॉरी अब ये वी की तरह दिख रहा है बट ऑलवेज राइट अ यू, ए यूनियन ऑफ बी। नाउ इंटरसेक्शन सिस वी हैव टू रिप्रेजेंट लाइक दिस, ए यू के उल्टा यू डालना है, उल्टा यू इंटरसेक्शन ऑफ बी। क्लियर है? सो ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। अब मान के चलो यहाँ पे अब हमें इन सेट्स को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय यूनियन ऑफ सेट, व्हाट इज मीन बाय इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सो डू वन थिंग, इसको हम थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। चलो, नाउ व्हाट इज अवर मेन टारगेट, वी आर टॉकिंग अबाउट यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब उस केस के लिए हमें यूनियन क्या है और इंटरसेक्शन क्या है ये पहले अंडरस्टैंड करना है, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन। यूनियन, ओके, यूनियन मीन्स व्हाट, जस्ट फर्स्ट की पॉइंट ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, ये शॉर्टकट ध्यान में रखो, ऑल टुगेदर। इंटरसेक्शन मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली कॉमन, so we are talking about only common element. ठीक है, now here we are representing all together means let's assume it, यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। ठीक है, जैसे कर्ण अर्जुन आएंगे वैसे ही यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे ये भी हमें देखना पड़ेगा। सो इन सेकेंड केस इट कंसिस्ट all the all the elements of A, all the elements of A. Second one, elements of B. Okay, elements of A and elements of B. Along with that, all common elements. Along with that, all common from A and B. ठीक है, सो यहाँ पे इतने सारे एलिमेंट्स हमें लिखना है। मीन्स इफ वी आर राइटिंग A यूनियन B means we have to write a element of A also, element of B also and those who are present in A and B also. Clear है? Next,
So in this case, the second point is that we have to write only elements which are common in A and B. Okay, we are writing only common elements in A and B. Sorry, A and B. क्लियर है? तो ये उनका सेट रहेगा. अब मान के चलो हम सेट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इन द लिस्टेड फॉर्मेट या फिर रूल फॉर्मेट. अगर आपको रूल फॉर्मेट में या फिर लिस्टिंग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? सही मतलब डायग्रामेटिकल पे तो मैं बताऊंगा, अभी हमें रूल फॉर्मेट में हमें डिस्कस करना है. तो हम कैसे लिख सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट या फिर ए यूनियन बी लिख लो. सो यू विल राइट इट लाइक दिस, ए यूनियन बी. इसको सेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कैसे आएगा? ए यूनियन बी इज अ सेट ऑफ एक्स such that x belongs to okay, x belongs to A or x belongs to B. ठीक है? सो यूनियन ऑफ सेट हम रूल फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं. ओके, A यूनियन B means A union B which is a set of x such that x belongs to A or x belongs to B. क्लियर है? नेक्स्ट, अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन के बारे में लिख लेते हैं. सो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी. ठीक है? सो ए विच इज ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, हम उसको क्या बोलते हैं? उसको रूल फॉर्मेट में या फिर रोस्टर फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं. क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टू द डायग्राम्स. अभी ये यूनियन के बारे में हमने इतना सब कॉमन डिस्कशन कर लिया, अब हमें डायग्राम की तरफ चलते हैं. सो लेट्स मूव टू द डायग्राम. सो उसके जो डायग्राम्स होगी वो कैसे होगी, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, और उसके बेसिस पर से हमें जो एग्जाम्पल आएगा वो किस टाइप का एग्जाम्पल आएगा और कैसे हमें सॉल्व करना है. क्लियर है? चलो, नाउ लेट्स बिगिन विद द डायग्राम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज पर द प्रीवियस केस वी नो दैट वी हैव टू कंसिडर टू टाइप्स ऑफ सेट्स. ठीक है? अब कोई भी दो सेट्स कंसिडर करके चलना पड़ेगा. लेट्स अज्यूम इट. सो दिस इज सेट ए. नाउ दिस इज this is set B, set A और set B. अब मान के चलो हमने दो सेट कंसिडर कर लिए. ठीक है? ये ज़्यादा हो गया. ठीक है? नाउ व्हाट इज द टारगेट? फर्स्ट रिप्रेजेंट दिस. सपोज दिस इज A सेट, दिस इज B सेट. अगर मान के चलो, मैंने पहले भी बोला था, अगर जस्ट इफ यू वांट टू, if you are representing the set in a single format, or then we have to write a single one. मतलब just if you want to separate set, if you are representing a separate set, so we are representing like this. This is set A, this is set B. Similarly for intersection also, let's assume it this is set A and this is set B. Clear है? Now for this, अगर आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, सो वी हैव, सो इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट दिस ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, सो लेट्स सी व्हाट टाइप ऑफ डायग्राम इज देयर. नाउ सो दिस इज सेट ए. ओके, नाउ दिस इज सेट बी.
क्लियर है. So this is set A and this is set B. So they intersect with each other. Sorry, they mix with each other. Just like keep in mind, ये दोनों मिक्स हो रहे हैं और ऐसी उसकी जो होगी डायग्राम आएगी. क्लियर है. So in this case, what is our main target? We are representing the elements which are present in A also, present in a B also, and present in a both also. Means, sorry, इसको थोड़ा मैं शेडेड कर देता हूँ. Okay, so let's begin with this. Suppose this is set A and let's assume it this is set B. अब इस केस में so A union B, okay, what is our target? We are finding A union B. So जो elements, जो shaded portion है, okay, पूरे shaded portion के जो element है वो इस केस में आएंगे. मतलब A के भी element आएंगे, B के भी आएंगे, बट यहाँ पे देख लो इसका सब पोर्शन है. इस केस में हर एक एलिमेंट क्या हो रहा है, डबल आ रहा है, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ए से भी बिलोंग करते हैं, कुछ एलिमेंट्स बी से भी बिलोंग करते हैं. तो ये जो कॉमन वाले एलिमेंट है, जस्ट वी हैव टू राइट इट वंस. ठीक है. अगर मान के चलो ए में भी एक नंबर है, बी में भी नंबर है, वो 2 बार रिपीट आ रहा है, तो वो 2 बार नहीं लिखना है हमें, फिर एक ही बार उसको रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. सो लाइकवाइज दिस इज द डायग्राम फॉर ए union B. मतलब we have to write a element of A also, we have to write a element of B also, and we have to write a element which is common in A and B also. Clear है. So this is the diagram for A union of B. Similarly, let's draw a diagram for A intersection B. Clear है. A intersection B. So let's assume it this is A set. Now let's assume it this is B set. ठीक है. So in this case, what is our main target? We are talking about only common portion, means this portion which we called as a common portion. So A intersection B is nothing but only the elements which are present in this portion. Clear है. So in this case we have to write only common elements. Clear है. So अगर इसका हम इक्वेशन अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या इक्वेशन होगा? So A union B, ठीक है, A union B is nothing but number of A union B is nothing but number of elements which are present in A plus number of elements which is present in a B minus number of elements which is in A intersection B. ओके, यहाँ पे एक ही बार माइनस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें 2 बार कोई भी टर्म रिपीट हो रहा है, तो हमें करना क्या है, एक ही बार लिखना है. तो एक बार हमने जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये 2 बार ऐड हो रहा है, एक बार इसमें ऐड हो रहा है, एक बार इसमें ऐड हो रहा है, बट हमें 2 बार नहीं चाहिए, एक ही बार चाहिए, इसलिए हमने ये क्या किया, एक बार उसको माइनस कर दिया. कॉमन टर्म जो है, मतलब ए में भी है वो बी में भी है, अगर हम सेट लिख रहे हैं तो ए प्लस बी कर रहे हैं तो वो 2 बार आ रही है, बट हमें वो एक बार ही चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया, कॉमन टर्म्स को एक बार यहाँ से माइनस कर दिया. क्लियर है. क्योंकि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको आगे जाके काम में आने वाला है, क्योंकि जब वो वर्ड प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे तो टोटल वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला. ठीक है. ये जो फॉर्मूला है उसी के बेसिस पर से हम आगे के जो पूरे के पूरे प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने वाले हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स. ठीक है. तो लाइकवाइज आपको ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉन्सेप्ट है, आई होप सो कि ये समझ में आया होगा. सो दिस इज द डायग्राम फॉर ए इंटरसेक्शन बी एंड दिस इज द डायग्राम फॉर ए यूनियन बी. क्लियर है. चलो, नाउ लेट्स मूव टू द
नेक्स्ट, अब डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट मतलब वो अलग थलग ही होगा, मतलब वो किसी से मैच नहीं करेगा, ठीक है। अगर ऐसा सेट होगा तो उसे हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट। क्लियर है। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम ये दो सेट ले लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट सेट और ये यूनिवर्सल सेट है। डिसजॉइंट का मतलब होता है नॉट अ सिंगल एलिमेंट, डिसजॉइंट सेट, ओके। डिसजॉइंट, ओके। अगर मान के चलो, अगर एक चीज़ को हमने अगर तोड़ दिया, मान के चलो अगर ये पेन है, ठीक है, और ये पेन को अगर हमने क्या कर दिया, बीच में से अगर तोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा अलग बनेगा और ये पोर्शन पूरा अलग बनेगा, ठीक है। मतलब ये इंडिविजुअल सेट एक्ट करेगा और ये इंडिविजुअल सेट एक्ट करेगा, ठीक है। बट इसमें इसी तरीके से हमें इसको भी कोरिलेट करना है कि जो सेट है डिसजॉइंट सेट मतलब क्या है कि देयर इज अ नो सिंगल एलिमेंट विच इज कॉमन इन बिटवीन दिस टू सेट, ठीक है। नॉट सिंगल एलिमेंट is present in both the set, both the sets, not a single element, मतलब कुछ भी उनमें कॉमन नहीं रहेगा, ठीक है, कुछ भी उसमें कॉमन नहीं रहेगा। सो लेट्स अज्यूम इट। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते सेट, लेट्स राइट डाउन सेट ए एंड सेट बी। अब यहाँ पे एक सेट हम मान के चलते हैं कि 1 3 5 और एंड 9, ये एक सेट है। और दूसरा सेट हमने ये लिख लिया 2 4 8 और यहाँ पे लिख लेते हैं लास्ट नंबर 10। मैंने रैंडमली नंबर सेलेक्ट कर दिया है। तो इस केस में अब यहाँ पे देख लो क्या है, हमें ये दिखाना है कि कौन सा सेट यहाँ पे डिसजॉइंट, ये जो सेट्स दिए हुए हैं वो सेट डिसजॉइंट सेट है कि नहीं, ये वो डिस्कस करना है। यहाँ पे देख लो, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा, ओपेसिटी थोड़ी 75% लिख। सो दिस इज सेट ए, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। अब मान के चलो इसमें कोई कॉमन है क्या, 1 3 5 9, सो 1 इंडिविजुअल है, 3 5 एंड 9, दिस ऑल आर इंडिविजुअल नंबर्स, ठीक है ना, कोई ए में बी में कॉमन है। सो राइट डाउन हियर, लेट्स अज्यूम इट दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। सो राइट डाउन हियर 1 3 5 9, ठीक है। नेक्स्ट वन 2 4 8 एंड 10, क्लियर है। सो 2 4 8 एंड 10। सो नॉट अ सिंगल एलिमेंट, यहाँ पे हमने क्या दिया, नॉट अ सिंगल एलिमेंट विच इज कॉमन इन दिस टू सेट। सो देयरफॉर दिस ए एंड बी डिसजॉइंट सेट, ए एंड बी बोथ आर डिसजॉइंट सेट। क्लियर है। ये किस टाइप के सेट है, डिसजॉइंट सेट है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं उसमें, तो उसे हम डिसजॉइंट सेट ही कहेंगे। क्लियर है। चलो let's move to the next and most important topic which is a word problem. अब यहाँ पे हमें यूनियन, इंटरसेक्शन या फिर बहुत सारे एग्जांपल्स है, तो उसका हम बेसिक ले रहे, तो जस्ट हम एक थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और देन वी विल मूव टू द देन वी विल क्लोज इट। बिफोर वी आर गोइंग टू द वर्ड प्रॉब्लम, जो हमारा भी फॉर्मूला था, सो उस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है वो हम डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्मूला, सो नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। क्लियर है। सो दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्मूला। जहाँ पे भी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स या फिर कुछ सॉल्व करना है तो ये ही इस्तेमाल करना है। क्लियर है। चलो नाउ
टेक अ सिंपल एग्जांपल, व्हाट इज़ द, चलो सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि भाई हमने कैसे प्रूव किया, इसका आंसर ऐसे ही क्यों आ रहा है, और ये फॉर्मूला सही है या गलत है, ये आप कैसे प्रूव करोगे। ठीक है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा शॉर्टकट में प्रूफ एक्सप्लेन कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम इट, अब मान के चलो कोई भी सेट ले रहे तो लेट्स अज्यूम इट, यहाँ पे हमें क्या करना है, सेट्स कंसिडर करके चलना है। लेट्स सी ए इज़ अ सेट, इसमें एलिमेंट्स क्या है, सेट ए के एलिमेंट्स देख लो क्या है, 3, 9, 6, 12 एंड 15। तो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपको, 3, 6, 9, 12, 15, क्लियर है। So this is set A. Now similarly B is nothing but 6, 12, 18, 24, 30 and 36, clear है। चलो, so let's assume it this is set A, this is set B। अब यहाँ पे ये तो सेट दे दिया है, अब हमें रिप्रेजेंट करना है। पहले तो जो बच्चों को मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना हम पहले लर्न करेंगे। ठीक है, डायग्रामेटिकली उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट डायग्राम। हम डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो लेट्स अज्यूम इट दिस इज़ अ यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट उसमें क्या आ रहा है, 2 सर्कल्स आ रहे हैं, तो थोड़े मैं अलग रंग से लिख लेता हूँ। चलो, सो दिस इज़ फर्स्ट, ठीक है, और ये सेकेंड वन। सो लाइक दैट ये आपका डायग्राम बनेगा। चलो, सो ये आपकी डायग्राम बन गई। चलो अभी इसमें करना क्या है, सो वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस नंबर्स। ओके, सो जो सेट ए है, बी है और सी के जो नंबर्स है वो नंबर्स हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करने हैं। सो फॉर दैट मैंने क्या किया, लेट्स अज्यूम इट ए के जो एलिमेंट्स है, तो पहला नंबर क्या है, ए का 3 है, नेक्स्ट 9 है, 15 है। ठीक है, अब यहाँ पे बिफोर वी आर प्लॉटिंग थोड़ा सा आपको यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन मतलब प्री वर्क करना पड़ेगा। सो यहाँ पे देख लो कॉमन जो एलिमेंट्स हैं पहले उस पर फोकस करना है। जब डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉमन केस में कुछ तो लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे देख लो 6 इज़ अ कॉमन, नेक्स्ट कौन सा नंबर है, 18 नहीं है, 12 है। सो 12 कॉमन नंबर है। ठीक है, तो पहले जो कॉमन नंबर्स है उन पे हमें फोकस करना है एंड वी हैव टू राइट दिस कॉमन नंबर्स। कौन से कॉमन नंबर मिले हमें, 6 एंड 12। सो राइट डाउन दिस कॉमन, क्योंकि वो ए में भी आएंगे और बी में भी आएंगे। सो दिस इज यू, दिस इज ए, दिस इज बी। चलो, नाउ राइट डाउन दिस सेट 3, 6, 3, 6, 9, 15 एंड 12। सो दिस इज अ सेट ए। नाउ लेट्स मूव टू द सेट बी। बी क्या है, 6, 12, 18, 24, 30 एंड 36। तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा। 6 है कॉमन में तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देन 12 भी कॉमन में है, नाउ 18, 24, 30 एंड 36, क्लियर है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट और गिवन सेट इन अ डायग्राम फॉर्मेट, क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें कैलकुलेट करने हैं। लेट्स अज्यूम इट, अभी ए सेट, सो राइट डाउन नंबर ऑफ ए। ठीक है, सो राइट डाउन नंबर ऑफ ए सेट। ठीक है, ए सेट के नंबर्स कौन से, 1, 2, 3, 4, 5। तो देख लो 3 और 2 5। सो द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन अ सेट ए इज 5। नेक्स्ट एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज प्रेजेंट इन अ सेट बी। तो काउंट करके देख लो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो राइट डाउन 6 एलिमेंट। ठीक है, अब फॉर्मूले में देख लो हमें ए इंटरसेक्शन बी के भी नंबर चाहिए।
मतलब ये पोर्शन के भी नंबर चाहिए। सो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो कितना हो रहा है 6 and 12, 2 numbers are there, so write down 2। क्लियर है? तो पहला नंबर मिल गया 5, दूसरा नंबर मिल गया 6, तीसरा नंबर मिल गया 12। क्लियर है? नाउ सो व्हाट इज ऑफ टारगेट, लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज। ओके, अभी पहले हमें फॉर्मूला पुट करते हैं, क्योंकि हमें LHS इज इक्वल टू RHS अकॉर्डिंग टू द लॉजिक। इफ LHS इज इक्वल टू RHS आता है, ओके, सपोज इफ़ योर आंसर इज LHS इज इक्वल टू RHS, मत मान के चलो अगर ये आंसर सही आ रहा है आपका LHS इज इक्वल टू RHS, देन एंड देन वॉट एवर द प्रूफ, वॉट एवर द फॉर्मूला दैट वी प्रूव ओवर देयर, दिस फॉर्मूला विच इज करेक्ट। क्लियर है? सो लेट्स बिगिन विथ अ फॉर्मूला। सो नंबर ऑफ A union B is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B। क्लियर है? चलो, अब A union B, अब A union B मतलब already we know that element which is present in a A also, which is present in a B also and common also। तो यहाँ पे देख लो कितने हैं। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना मिल रहा है हमें 9। सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी यहाँ पे भी लिखना थोड़ा भूल गए हम, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 9। सो राइट डाउन हियर 9 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए, सो वी नो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 5 प्लस नंबर ऑफ बी, ओके, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 6 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2 है, तो सॉल्व कर दो। 9 इज इक्वल टू, ठीक है, 6 में से 6 माइनस 2 तो 4, 4 हो गया, 4 प्लस 5 9, सो 9 इज इक्वल टू 9। ठीक है, मतलब RHS इज इक्वल टू LHS, दैट मीन्स दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। सो लाइकवाइज वी विल सॉल्व फर्दर एग्जाम्पल्स। क्लियर है? तो ऐसे ही हमें क्या करना है, आगे के एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं। एंड दिस इज अ क्वेश्चन विच इज़ गिवन टू यू ऑन अ पेज नंबर 14। सो पेज नंबर 14 का जो एक्टिविटी है, दिस एक्टिविटी इज नथिंग बट प्रूफ ऑफ दिस फॉर्मूला। चलो, सो दिस इज द प्री वर्क दैट वी डन राइट नाउ, एंड नाउ वी हैव टू मूव टू द वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, वी हैव टू मूव टू द word problems। so this is a quite interesting topic। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे 2 ही चीज़ों पे फोकस करना है कि एक टारगेट हमारा ये रखना है कि आपको जो दिया हुआ है वो फाइंड आउट करना है, और जो नहीं दिया है, सॉरी, जो दिया हुआ है लिख के लेना है, और जो नहीं दिया है उसको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? चलो, सो वी आर टॉकिंग अबाउट वन बेस्ट एग्जाम्पल विच इज़ गिवन टू यू। सो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि इन अ क्लास ऑफ 70 स्टूडेंट्स। ठीक है, सो राइट डाउन गिवन डेटा। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। सो इन अ गिवन क्लास, सो देर आर टोटल 70 स्टूडेंट्स। तो लेट्स बिगिन विद द डायग्राम। थोड़ा सा डायग्राम लिखते हैं तो थोड़ा समझने में भी आसान हो जाएगा। So this is the diagram for universal set होगा, then ये फर्स्ट सेट होगा, ठीक है, नेक्स्ट ये सेकंड सेट है, ओके, चलो लाइक दैट। ओके, सो गिवन कंडीशन इज दैट, तो टोटल क्लास, इन द टोटल क्लास मतलब जस्ट एज्यूम इट ए कॉमन एंड बी, ये तीनों मिला के मतलब क्या हो जाएगा वो ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कितना हो रहा है 70 इक्वल्स टू 70 स्टूडेंट्स। सो 45 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट। ओके, यहाँ पे मान के चलो ये क्रिकेट की टीम है,
और ये खो खो की टीम है सी, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम इट, ये क्रिकेट वालों को हम ए कंसिडर करके चलते हैं, इनको बी कंसिडर करके। सो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 45, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू, बी कितने हैं 52, ठीक है। सो 52 स्टूडेंट्स दे लाइक टू प्ले खो खो एंड 45 स्टूडेंट्स दे लाइक टू प्ले cricket. Next condition is all the students like to play at least one of two games. So how many students they like to play cricket और खो खो। अब यहाँ पे हमें दूसरी कंडीशन ये दी हुई कि अभी इसमें से बहुत सारे बच्चों को दोनों गेम्स पसंद है, बहुत सारे बच्चे ऐसे, मतलब सभी बच्चे ऐसे हैं कि कम से कम एक तो गेम खेलते ही खेलते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ओके। सो गिवन डेटा भी देख लो क्या है, अभी कॉमन तो नहीं मिले हमें, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी वो हमारे पास नहीं है, मतलब कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो क्रिकेट भी खेलते हैं और कबड्डी या खो खो भी खेलते हैं, तो हमें पता नहीं है। तो फर्स्ट टारगेट इज़ दैट कैलकुलेट नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ओके। ए यूनियन बी, खाली लेफ्ट का यूनियन मैंने राइट में शिफ्ट कर दिया। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए, कितने बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट, तो 45 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। कितने बच्चे खो खो खेल रहे हैं, 52 बच्चे हैं कि क्रिकेट खेल रहे हैं। और क्लास में कितने बच्चे हैं, तो हमारे पास 70 स्टूडेंट्स हैं। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है 45 प्लस 72 माइनस 70। सो ए इंटरसेक्शन बी कि कितने बच्चे कि जो दोनों खेलते हैं, मतलब वो क्रिकेट भी खेलते हैं और खो खो भी खेलते हैं, तो ये है आपके 27 स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसका जो आंसर आ रहा है ये हो गया आपका 27, क्या हो गया 27। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन क्या पूछा है कि एटलीस्ट, ओके, जस्ट राइट डाउन हाउ मेनी स्टूडेंट्स दे लाइक टू प्ले क्रिकेट, ओके। अभी हम क्रिकेट के बारे में बात करते हैं। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स दे लाइक अ क्रिकेट, ठीक है। तो क्रिकेट सो अब टोटल बच्चे कितने हैं, तो टोटल बच्चे हमारे पास क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, तो 45 हैं। तो हमें अभी ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स दे लाइक टू प्ले ओनली क्रिकेट, खाली क्रिकेट ही खेलते, बाकी कुछ नहीं खेलते। तो सो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स 45, उसमें से 27 स्टूडेंट्स तो दोनों गेम खेलते हैं, मतलब वो कबड्डी भी खेलते हैं, सॉरी खो खो भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। तो प्योरली जो क्रिकेट खेल रहा है वो बच्चे क्या होंगे, 45 माइनस 27 ही होंगे। सो 45 माइनस 27 अगर कैलकुलेट करते हो तो 18 स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो ओनली क्रिकेट खेलेंगे। अब मान के चलो अभी सेम सिनेरियो अब यहाँ पे भी होगा। सो ओनली खो खो खेलने वाले बच्चे कितने होंगे देखो खो खो कितने, सो 52 स्टूडेंट्स दे लाइक टू प्ले खो खो, और उनमें से 20 स्टूडेंट जो है वो दोनों भी खेलते, क्रिकेट भी खेलते हैं खो खो भी खेलते हैं। तो अगर इनमें से अगर माइनस करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। सो अगर 27, 28, 29, 30 मतलब होगा 30, 31, 32, ओके। सो अगर इसको सब्सट्रैक्ट करोगे, सो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 5, 12, तो ये हो गया 5 और 3, 2। सो 25 स्टूडेंट्स दे प्ले ओनली
what we call as a Coco. So likewise we have to solve these problems. So in the next session we will move to the word problems, or otherwise just we will talk about how to solve the exercises. There are a total 4 exercises. So start from 1.1 to 1.4. तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इस पे फोकस करेंगे. सो नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, एंड so thanks for watching, and thanks for participating in these sessions. So once again, thanks for watching. Do one thing, do like, share and subscribe. Thanks.